صبح کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جہاں نئی امید جنم لیتی ہے، نئی روشنی ہمیں گلے لگاتی ہے اور ہم سب کو موقع دیتی ہے کہ کل کے دکھوں کو چھوڑ کر آج ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ لیکن کیا ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہیں یا پھر وہی پرانی غلطیاں، وہی بے ترتیبی، وہی جلد بازی؟ آج ہم 10 ایسی باتوں کے بارے میں بات کریں گے جو صبح کے وقت ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی خوشی، سکون اور توازن سے بھرپور ہو جائے۔ تو آئیے خود کو بدلنے کی پہلی سیڑھی پر چڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ نمبر 1، سوتے ہی موبائل دیکھنا۔ آنکھ کھولی نہیں کہ موبائل ہاتھ میں، کبھی واٹس ایپ، کبھی فیس بک اور کبھی انسٹاگرام۔ یہ عادت نہ صرف وقت ضائع کرتی بلکہ دماغی سکون کو بھی صبح چھین لیتی ہے۔ صبح کا وقت جو ہوتا ہے ذکر کرنے کے لیے ہوتا ہے، دعا کے لیے ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کے اپنے آپ کے ساتھ جوڑنے کا ہوتا ہے، نہ کہ دنیا کے شور میں گھسنے کا۔ صبح ہی یہ دنیا کا شور ہے، اس سے جڑنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ جڑیں۔ اٹھتے ہی 2 منٹ آنکھیں بند کریں۔ جب آپ بیڈ سے اٹھتے ہیں، بیڈ پہ ہی بیٹھ کے 2 منٹ اپنی بالکل آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، دل کو سکون ملے گا۔ آگے آ جاتا ہے نمبر 2، بغیر شکر گزاری کے دن کا آغاز کرنا۔ اکثر لوگ جو ہے نا آنکھ کھلتے ہی کہتے ہیں اف آج بھی وہی کام، وہی تھکن۔ یہ شکایت والا انداز ہماری پوری صبح کو منفی بنا دیتا ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہی پہلے الفاظ، پہلے کلمے ہی ہمارے اس طرح کے نیگیٹو نکلیں گے نا تو ہماری پوری صبح جو ہوتی ہے وہ منفی ہو جاتی ہے۔ صبح روز ایک جملہ دل سے بولیں۔ جب آپ اٹھیں، بستر پہ بیٹھیں، جب آپ پہلی سانس لیتے ہیں نا، آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا گہری سانس لینا شروع کر دیجئے، ڈیپ بریدنگ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو ساتھ ہی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آج کا دن دیا۔ اگر آپ 5 منٹ بستر سے اٹھنے سے پہلے اپنے بستر پہ بیٹھے ہی نا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کے ساتھ وقت گزار لیں گے تو اس سے دن کا آغاز اتنا اچھا ہوگا، آپ کر کے تو دیکھیں، پھر بتانا۔ اچھا، نمبر 3 پہ آ جاتا ہے، چادر میں لپٹے رہنا۔ بعض خواتین دیر تک بستر میں نا لیٹی رہتی ہیں بغیر کسی پلان کے، کوئی پلان ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، ویسے ہی لیٹی رہتی ہیں، بس کہتی ہیں یہی جو ہے نا، یہ ٹائم جو ہے نا، اس وقت میری تھکن اتر رہی ہے۔ اصل میں وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہیں۔ یہ وقت جسم کو سست اور دماغ کو باریک بنا دیتا ہے۔ یہ جو وقت ہوتا ہے نا، جو ہم ویسے ہی لیٹے رہتے ہیں کہ یہ تھکن اتارنے والا وقت ہے، تو اصل میں ہمارے اندر سستی بھی آ جاتی ہے اس وقت اور دماغ میں بھاری پن بھی آ جاتا ہے۔ بستر سے فوراً اٹھیں، وضو کریں، نماز پڑھیں اور کچھ منٹ پیدل چلیں۔ تھوڑی دیر کے لیے واک ضرور کریں، چاہے آپ کمرے سے کمرے تک کی کیوں نہ کریں۔ 10 منٹ کی واک جو ہے نا ہمارے دماغ میں ایسی تازگی بھرتی ہے کہ سارا دن ہمارا اچھا گزرتا ہے پھر۔ اچھا، آگے آ جاتا ہے نمبر 4، ناشتہ چھوڑ دینا یا لیٹ کرنا۔ اکثر خواتین تو کرتی ہی نہیں۔ گھر کی خواتین بچوں کو اسکول بھیجتی، شوہر کو دفتر بھیج دیتی، مگر خود ناشتہ نہیں کرتی۔ پھر کیا ہوتا ہے، دن بھر چکر آتے رہتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ تو بھئی اپنا خیال نہیں کرو گے، ناشتہ نہیں کرو گے تو چکر اور کمزوری اور چڑچڑاپن تو ہوگا نا، تو سارا دن بھی خراب گزرے گا۔ خود سے محبت کریں، سب سے بڑھ کے سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کریں، پھر دوسرا کوئی بھی انسان ہے نا، پھر اس کے بعد ہی اس سے محبت کریں۔ اگر آپ نے کرنی ہے محبت، آج سے وعدہ کریں کہ میرے ساتھ سچ میں وعدہ کریں کہ بر وقت ناشتہ کریں گی، آپ اپنا خیال بھی رکھیں گی، کیونکہ صحت مند ماں اگر ہوگی تو خوشحال گھر ہوگا۔ ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک رکھنا ہے نا، تو ہمیں ناشتہ بھی کرنا ہے، اپنے لیے واک بھی کرنی
और दिन भर अपना ख्याल भी रखना, अपने आप से मोहब्बत भी करनी और दूसरों का भी ख्याल रखना। फिर हम करेंगे, रखेंगे दूसरों का। अगर हम खुद फिट होंगे तो क्यों नहीं रखेंगे। अच्छा, आगे आ जाता है जी नंबर 5। अच्छा, दिन की प्लानिंग किए बगैर आगाज़ कर देना, कोई प्लानिंग नहीं, आज क्या करना है पता नहीं। यही उलझन जो है ना हमें सारा दिन बेसुकून रखती है, बेसुकूनी का बायस बन जाती है हमारे लिए कि आज क्या करना, आज क्या पकाना है। रोज़ यही होता है हमारे साथ। रोज़ सुबह 3 काम एक कॉपी में लिखें जो ज़रूर मुकम्मल करने हैं। आप सुबह सुबह उठती हैं तो कॉपी में 3 काम लिखिए जो कि आपने करने ही करने, चौथा काम ना कीजिए। मैं तो कहती तीसरा भी आधा कर लीजिए, 3 करने हैं ना, तीसरा आधा कर लीजिए, लेकिन दूसरे दिन उससे थोड़ा मोटिवेट ज़्यादा होना है कि 3 काम कंप्लीट करने। अगर दूसरे दिन थोड़ी डंडी मारोगे ना तो तीसरे दिन उसको कंप्लीट करना है। आप देखेंगी वक्त आपका गुलाम बन जाएगा। आगे आ जाता है जी 6 नंबर, दूसरों से शिकायत या लड़ाई झगड़े। कभी नंद के ताने, कभी शोर से बहस, कभी बच्चों पर गुस्सा, ऐसे चीख चिकाड़ा मचाया हुआ है। ये सब सुबह के वक्त बरकत को ख़त्म कर देता है। अगर हम सुबह सुबह ही नंद के ताने लेके बैठ जाएं, बाहर निकली हैं बच्चों को छोड़ने के लिए और साथ ही 4-5 ताने भी रास्ते में सहेली को सुना दिए ना, अक्सर ऐसा ही होता है ना कि साथ साथ चल रहे हैं, नंद ने ये कह दिया, शोहर ने ये कह दिया, बच्चों के ऊपर कभी गुस्सा हो जाती हैं। तो ये जो होता है ना सुबह के वक्त बरकत ख़त्म हो जाती है इन सारी चीज़ों से। सुबह का वक्त खामोशी, सब्र और नरम लहजे से गुजारें। चुप करके अपना चाय वाय बनाएं, बच्चे चले गए, चाय बनाओ, कप बनाओ, बैठ के मज़े से पियो और साथ साथ सोचो क्या आज का दिन क्या करना है। नंबर 7, बग़ैर दुआ या कुरान के दिन गुजारना। जिस दिन का आगाज़ ज़िक्र इलाही से ना हो वो दिन खाली, बोझल और बेबरकत रहता है। कम अज़ कम 5 आयात कुरान रोज़ सुने या पढ़े। हर सुबह 10 काम करने ना तो 7 काम हो गए। 8वां क्या काम हमने करना, आईने में खुद को देखकर मनफी सोचना। अच्छा, हम आईने में देखेंगे ना, हाय अल्लाह मेरी रंगत सारी ख़राब हो गई, काली हो गई, शायद मैं कल धूप में निकली थी इसीलिए तो मैं काली हो गई, मैंने शायद वो जो है ना वो सनस्क्रीन जो होती है वो नहीं लगाई होगी इसीलिए मैं मोटी हो रही हूँ, कि ये कपड़े मुझे तो फिट ज़्यादा हो गए हैं। बस ये देख दुख के ना आईने में खुद को देख के खुद को ही नीचा दिखाने वाले अल्फाज दिल को ज़ख्मी कर देते हैं। रोज़ आईने में देख कर कहें, मैं अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरती हूँ, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बनाया। मनफी सोचना बंद कीजिए, क्योंकि मनफी जितना सोचेंगे ना उतना ही हमारे जिस्म पे मनफी असरात ज़्यादा आएंगे। नंबर 9, दूसरों से खुद को मुआवजा करना। दूसरी औरतें कितनी खूबसूरत हैं, कितना बड़ा घर है उनका, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, उसके कितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। ये जो है ना मुआवजा बंदे को अंदर से मार ही देता है। ये मुआवजा खुशी को खा जाता है। अपने सफ़र पर ध्यान दें। आपका सफ़र कौन सा है उस पर ध्यान दें। हर औरत की कहानी अलग होती है। आज उसका वक़्त है, कल आपका होगा। ये सोचकर ये छीना झपटी जो होती है ना, इंसान जो एक दूसरे से जेलसी में आके पता नहीं क्या क्या करता रहता है। अगर हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, दूसरों से कंपैरिजन अपनी ज़िंदगी का ना करें। हमारे पास ये चंद चीज़ें हैं, हम इसमें भी खुश हैं। किराए का मकान है, ये चंद चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे, ये हमें पता है कि ये 4 दिन हमने रहना है, 4 दिन रहना है, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र हो जाना है। तो इसीलिए क्या ही दुख मनाना, घर चले जाएंगे, अल्लाह ताला सुकून देगा, वहाँ पे चीज़ें भी ले लेंगे। अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह, अल्लाह ने चाहा तो ले लेंगे, ना चाहा तो जैसे जिस हालात में रखेंगे अल्लाह ताला का शुक्र है। फिर भी आगे आ जाता है 10 नंबर,
जल्द बाजी, शोर और चीखों पुकार में सुबह गुजारना। सुबह घरों में ना सुबह का वक्त शोर से भरपूर होता है। छोटे बच्चे होना चीख चिकाड़ा ऐसा पड़ा होता है ना कि पता नहीं, इस घर में पूरा जो बच्चे होते हैं ना शोर से पूरा घर सर पे उठा लेते। वैसे मेरे बच्चे तो बड़े शरीफ थे वो इतना चीख चिकाड़ा नहीं मचाते थे। चीखना, डांटना, जल्दबाजी में सब गड़बड़ हो जाता है सुबह सुबह जो है ना बच्चों को छोड़ के आना होता है ना, तो सब भी गड़बड़ हो जाता है। दिन की शुरुआत नरमी से करें, मुस्कुराहट से और सुकून से। यही असल खुशी की कुंजी है। कुंजी जानते हैं आप क्या होती? वो चाबी, ताले वाली जो चाबी होती है ना, उसको कुंजी बोलते हैं। हाँ, और आप लोगों में से कोई जो पंजाबी है ना, सच में आज जो भी पंजाबी मेरी वीडियो देख रहा है वो नीचे आके कमेंट ज़रूर करे, वरना मैं आप लोगों से सारी रिश्तेदारियां ख़त्म कर दूंगी। क्योंकि पंजाबियों से मेरी रिश्तेदारी है ना, इसीलिए उर्दू से भी है लेकिन पंजाबियों से ज़्यादा है ना, इसीलिए मैं कहती हूँ कि उर्दू जो बोलते हैं वो मेरी बात नहीं मानते। चलें, जो पंजाबी है ना वो ज़रा आगे आ जाओ और कमेंट पंजाबी में ही कर देना, मैं पढ़ लवांगी, ठीक है। अच्छा जी, मेरी अज़ीज़ प्यारी प्यारी बहनों, एक अच्छी सुबह अच्छे दिन की बुनियाद होती है। अच्छी सुबह जो होती है ना, अच्छे दिन की बुनियाद होती है। जग ले जाओ, पानी भर के लिया के रखो, क्योंकि जो हस्बैंड आवेगा थोड़ा तो उन्हें पानी भी पीना है, इस वास्ते पानी लिया के रख दो। जग धोने वास्ते रख के आ गई मैं। अच्छा जी, एक अच्छी सी सुबह एक अच्छे दिन की बुनियाद होती है। अगर सुबह बेहतर बना ली तो शाम खुद ब खुद मुस्कुरा देगी, ऐसे हंसेगी मेरी तरह याद रखिए, खुशी बाहर नहीं होती, खुशी अंदर होती है, हमारे अंदर छुपी हुई होती है, हमें पता ही नहीं होता वो कहाँ छुपी हुई है। निकालो इस खुशी को। आज तो मेरे अंदर से भी खुशी निकल रही इस वक्त पता नहीं क्यों खुशी निकल रही। इस लम्हे जब हम शुक्रगुजार होते हैं, जब हम खुद को वक्त देते हैं और हम अपने घर को साफ़ करते हैं, हम अपने कमरे को साफ़ करते हैं, हम अपने हस्बैंड की खिदमत करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, सारे कपड़े तय लगा के रखते हैं, और जब हम ज़िंदगी को अल्लाह की नेमत समझ कर जीते हैं ना कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ये ज़िंदगी अता की, और जब हम ज़िंदगी को अल्लाह की नेमत समझ कर जीते हैं ना, तो ज़िंदगी को भागने की नहीं समझने की ज़रूरत होती है। आपका घर आपकी दुनिया है भाई, मेरा तो घर मेरी जन्नत है, आपके हाथ में है। अच्छा जी, अगर ये बातें दिल को छू जाएं, छूती हैं दिल को? पता नहीं छूती हैं कि नहीं छूती हैं, इसीलिए आप कमेंट नहीं करते। आज तो मैं बेले में दिमाग खा रही हूँ आप लोगों का। तो आज से एक नई शुरुआत करें, सुबह को अपना कीमती साथी बनाएं। जो सुबह का वक्त है ना, ये सुबह का वक्त ना बड़े जो होते हैं ना, मेरे सुबह के काम होते हैं, ये क्लीनिंग पोछे शोचे मार रही होती है, ये सुबह होता है। ये बड़ा अच्छा दिन होता है मेरा, जो सुबह का वक्त होता है। इसको मैंने बड़ा दोस्त बनाया हुआ है। मैं कहती हूँ सुबह ना चलें जी, हस्बैंड जी आ गए तो उनकी भी खिदमत तो उनके लिए खाने शाने बन रहे हैं अब, ठीक है। सुबह को अपना कीमती साथी बनाएं, दुश्मन नहीं कि सुबह आलस मचाते ऊपर लेटे रहो, ये नहीं। उठो और अपने लिए बागशक करो, अपना जो है ना अच्छे से तैयार होके, तो उसके बाद किचन को संभाल लो। और याद रखिए, मिडिल क्लास हाउस वाइफ जो होती है, ये चैनल है, चैनल का नाम है, आप लोगों को पता है, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया। मैं चेंज करती रहती हूँ, जैसे ना बेडशीट चेंज करते हैं वैसे ही मैं यूट्यूब का जो नाम होता है मैं चेंज कर देती हूँ। चैनल आपकी आवाज़ है, यहाँ हर वीडियो, हर लफ्ज़, हर ज़िंदगी आपकी यार आज मैं ना इसीलिए इस तरह का वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग बोर हो जाते हो। मैं ऐसे, मुझे तो नींद आना शुरू हो जाती जब मैं अपने ही व्लॉग देखती हूँ ना, मुझे नींद आना शुरू हो जाती। इतना आराम से कोई भी बात जो है ना तड़कीली भड़कीली नहीं होती, तो फिर मुझे ही नींद आना शुरू हो जाती है। मैंने कहा कि आज ना आप लोगों से हल्की फुल्की गपशप भी हो जाए।
تو یہ گپ شپ والا جو بلاگ ہے نا، آپ لوگوں کو آج کیسا لگا؟ سچ میں بتانا یار، اگر آپ دیکھتے ہو نا، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے آپ لوگ میری ویڈیو ہی نہیں دیکھتے. کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھ لیا کرو نا. مڈل کلاس ہاؤس وائف چینل آپ کی آواز ہے. یہاں ہر ویڈیو، ہر لفظ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. میں اپنی زندگی بھی بہتر بناتی ہوں اس سے، آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بھی بہتر بناتی ہوں. اور بڑے خوبصورت سی سبزی کٹی ہوئی ہے، گوشت ہے ساتھ، یہ جو ہے نا چکن یہ سارا مکس کر کے بنا دوں گی، مزے کا سالن بناؤں گی. اور آج کی ویڈیو یہیں تک ہے.